خان صاحب صحت مند ہے ماشاءاللہ، سب سے بڑی بات ہے. لائمنڈ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جو آج میری بہن نے آ کے بتایا ہے کہ عمران خان کتنے اپسیٹ ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے پچھلے 8 مہینوں سے عمران کو آہستہ آہستہ آئسولیٹ 1 سال سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا ہے. پہلے انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کو بند کر دیا جمعرات کے دن، جو کہ ماشاءاللہ اب سہیل افریدی اس دن ساری رات بیٹھے ہیں. یہ وہی جمعرات کا دن ہے جو 1 سال سے ملاقاتیں انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کی بند کی ہوئی ہیں، جو کہ کورٹ آرڈرز ہیں ان کے پاس. دوسرا منگل کے دن فیملی کے 6 لوگ اور وکلا کے 6 وکلا 300 کیسز جن کے اوپر ہوں، ان کے اندر نہ ان کے وکلا ملاقات کر سکتے ہیں، یہ اللیگل ہے. نہ فیملی مل سکتی ہے، یہ اللیگل ہے. اور آج جو ہمیں جب میری بہن نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنے اپسیٹ تھے، تو اب ہم جو ہمارا اپنا لائے عمل یہ ہے کہ اب یہ ایک میری بہن کو یہ تماشا بند ہوگا. ہم یہیں بیٹھیں گے ہر منگل کو، اور جو پارٹی والے ہیں وہ بیٹھیں گے جمعرات والے دن، جب تک بحال نہیں کرتے جو کورٹ آرڈرز ہیں جو 6 لوگوں کے. اگلے ہفتے منگل کو ہم ان کو پیغام دے دیتے ہیں جیل انتظامیہ کو کہ 6 جو فیملی ممبرز ہیں وہ ملیں گے اور 6 وکلا ملیں گے، اور جمعرات والے دن جو 6 پارٹی کے لوگوں کو اجازت ہے ملنے کی وہ سب ملیں گے. یہ ہماری اب اگلا جو جمعرات کو سہیل افریدی خود یہاں پہ موجود ہوں گے، جنہوں نے اجازت، جن کے پاس کورٹ آرڈر ہے ملاقات کا. اور اس کے علاوہ اگلے منگل کو ہم سارے 6 رشتہ دار فیملی ممبرز اور 6 ہی وکلا اگر نہیں ملاقات کریں گے ہم یہیں سے نہیں اٹھیں. کوئی احتجاج کی کال بھی دی خان صاحب نے اندر سے کہ احتجاج کریں گے؟ دیکھیں عمران خان نے آپ اپنے قوم کو پیغام دے دیا. یہ وہ انسان ہے جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے اور جو آج انہوں نے بتا دیا، جن کو آہستہ آہستہ آئسولیٹ اس حد تک کر دیا تھا کہ اگر آج ہم یہاں احتجاج نہ کرتے تو عمران خان پچھلے 7 ہفتے سے مکمل آئسولیشن میں. میری بہن آج ان 7 ہفتوں میں تیسری دفعہ ملاقات ہوئی ہے 20 منٹ کی. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کال کیا دینی ہے، آپ باہر دیکھ لیں یا پیچھے دیکھ لیں. ہم کھڑے بھی نہیں ہو سک رہے تھے، لوگوں کا جوش اتنا زیادہ ہے. وہ ہمیں کہہ رہے تھے، لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کھڑے کیوں ہیں، آپ جائیں اڈیالہ جیل کی طرف. تو ہم دیکھیں ہمارا کام ہے کنٹرول کرنا. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیں غصہ بہت بڑھ چکا ہے اور ہمیں اس کو بڑھنے نہیں دینا. ہم اس سے بھی ہم یہاں کے سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑھنے نہیں دینا. اس لیے ان کا کام ہے کہ یہ جو ہماری لیگل رائٹس ہیں اس کو بحال کریں. اگلے ہفتے ہم ادھر ہی بیٹھیں گے. اور عمران خان نے جو قوم کو پیغام دیا وہ غور سے سن لیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ساری مافیاز ہیں جن کی آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ آپ غلام بن جائیں. ہم یہاں راستے میں آتے ہیں چکری کی طرف سے، آپ بھی کئی لوگ آتے ہوں گے، تو ہاؤسنگ سوسائٹیز جس سپیڈ پہ بڑھ رہی ہیں، پاکستان کی ان امپلائمنٹ 21 سال میں سب سے بلند سطح پہ ہے. اور یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جس سپیڈ سے ہم نے 2 سال میں بنتے دیکھی ہیں، ہم تو اس کے گواہ ہیں کہ اس وقت سارا کام چل رہا ہے لینڈ مافیا کا. جیسے عمران خان نے کہا شوگر مافیا، ہر قسم کی مافیا. جو میری بہن پیغام دے رہی ہیں آپ کو عمران خان کا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے خود نہیں کھڑے ہوئے اس کے لیے کال کیوں دیں گے وہ عمران خان. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں خود نا انصاف مل رہا ہے عدالتوں سے. تو اگر عمران خان کا پیغام سمجھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن آپ کو غلام بنایا ہوا ہے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ اور آپ کی اگلی نسلیں ان کے غلام رہیں گی. یہ پیغام ہے. اگر اس کی کوئی ٹرانسلیشن آپ خود کر سکتے ہیں. 27 آئینی ترمیم کے بارے میں خان صاحب نے کوئی بات کی ہے جو پاس ہوئی ہے کہ آپ کو ملاقات ضرور تھوڑا 20 منٹ کا ٹائم تھا، وہ اتنی جلدی میں یہ ہوا. ان کو وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ 27ویں کے بارے میں بتایا آپ نے کہ جو بھارتی اور اخبار میڈیا نے آپ کی صحت کے متعلق آپ کی جیل کے اندر جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے متعلق ایسی متضاد خبریں دی ہیں، آپ کو تشویش نہ صرف آپ کو یہ نہیں ان کو اس سے پہلے پتا تھا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں؟ نہیں، ان کو کچھ نہیں صاحب کی بہت ہی جھوٹی خبریں تھیں. اس کا خبریں جو چلاتے رہے وہ خان صاحب کے متعلق نہیں وہ جھوٹی نہیں. وہ صحیح خبریں تھی. آپ مجھے یہ بتائیں جو بند کر دیتے ہیں نا، 1 سیکنڈ سن لیں. جب آپ انلیگلی کسی کا رابطہ ختم کر دیں گے یہی ہوگا. سب سے آسان طریقہ
हमारी हुकूमत के लिए ये था कि ये इमरान खान से उनकी फैमिली और उनके वकला की मुलाकात करवाने गए। इनका ख्याल था अगर इमरान खान को बंद कर देंगे तो सारी दुनिया भूल जाएगी, तो इनका आज ये तो उनको टेस्ट ऑन हो गई है कि कोई नहीं भूलेगा इनको। और दूसरी बात ये, मैं और बात बताऊं, आप लोग एक दफा बताएं सबके लिए कि इमरान खान के लिए जो दुआएं हैं ना वो पूरी दुनिया में है, इसलिए इमरान खान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं उनके लिए बदुआएं हैं, उनके लिए जीना जिंदा रहना मेरा ख्याल है आइंदा जिंदगी मुश्किल हो जाए। मैडम आपने जो इंडियन मीडिया पे जो बयान दिया कि ये पार्टी का खान साहब से क्या कहेंगे, खान साहब ने क्या कहा? खुद करने देना, बिस्मिल्लाह पढ़ो। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो जब मैं इनसे मिली तो वो बहुत डिस्टर्ब और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया सेहत की बता रही हूँ कि सेहत उन्हें कहते हैं कि इतनी मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें और बुशरा बीबी को। कहते हैं कि छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया, मैं ही आखिर एक मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। और कहते हैं ये जो फिजिकल टॉर्चर है, ये जो मेंटल टॉर्चर है, फिजिकल टॉर्चर से भी ज्यादा बुरा है। और उन्होंने कहा कि ये सारा आसिम मुनीर है, ये रिस्पॉन्सिबल है। और मैं जब इनको बताया कि मैंने इनको बताया सारा कि नौरीन नियाजी के साथ इन्होंने पुलिस वालों ने क्या किया, तो बहुत डिस्टर्ब हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़रा अच्छे अल्फाज में बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर के ये कहने पे ये सब कुछ इनकी जरूरत है, ये सब कुछ करने की। एक वो जहनी मरीज है, वो इस घटिया लेवल पे कहते वही सिर्फ उतर सकता है और कोई नहीं उतर सकता। कि एक इनकी उम्र देखें और आपको पता है कि कोई जेंटल सी है, कुछ करती भी नहीं है। कहती जहां उन्होंने यास्मीन राशिद जैसे कैंसर सर्वाइवर को रखा हुआ है जेल में, बुशरा बीबी को इतने अरसे से उनकी भी सारे विजिट्स उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा, और कोई ये सहूलियात में भी कमी है। तो कहते हैं ये सिर्फ सब कुछ आसिम मुनीर के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। और अच्छा, फिर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और वो कुछ पार्टी वालों ने, क्योंकि इतने अरसे से तो आपको पता है इनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए थे, कुछ सवालात भेजे थे उनके लिए। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने पूछवाया था कि पंजाब बार के बारे में, पाकिस्तान बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे पीटीआई यूनाइटेड होकर उनको सपोर्ट करेगी, और इन्हीं के जो ये कहेंगे उसके मुताबिक सारी पीटीआई यूनाइटेड होगी इस कैंडिडेट के लिए। फिर उन्होंने अलामा नासिर और महमूद खान अचकज़ई के बारे में बताया। वो बड़े डिस्टर्ब थे। उन्होंने कहते हैं कि मैं उन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, और वो उनको अभी तक उन्होंने अपने पार्टी के एहलकारों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप सारे इंश्योर करें कि अपोजिशन नेशनल असेंबली के ये जो स्पीकर है और जो सेनेट का चेयरमैन है उनके साथ आप प्रोटेस्ट करें, आप इंश्योर करें कि उनकी नोटिफिकेशन जारी हो। खान साहब ने उनको बड़ी इज्जत करते हैं और उनको उन्होंने अपोजिशन लीडर सिलेक्ट किया, और वो इस चीज़ के बारे में अभी तक शौक थे कि अभी तक उनका नहीं हुआ। और हाँ, उन्होंने कहा जी अच्छा, इन्होंने खान साहब ने तहरीक का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई वालों पे ये बहुत सख्ती करते हैं। तो इन्होंने उनको वो लीडर्स हैं उस अलायंस के, और उनकी जिम्मेदारी है कि जो कॉल देगी सारी पीटीआई उनको उस कॉल में सपोर्ट करेगी। खास तौर पे खान साहब के अपने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको खान साहब ने कहा सब ने भरपूर मुकम्मल शिरकत करनी है। और हाँ नहीं, और पार्लियामेंट्री उनको पार्लियामेंट्री लीडर अभी तक सिलेक्ट नहीं, उसकी जगह खाली है। उन्होंने शायद खट्टर को कहा कि इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें अपोजिशन का। और कुछ बताया था सुहेल अफरीदी के बारे में। उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे, उन्होंने कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आयन और कानून अब खत्म हो चुका है।
ये सारा पीटीआई के लिए आइन और कानून और बाकी सारे उस कानून के ऊपर है। जब कोई कानून नाफिज करना तो पीटीआई पे ले आते हैं। तो इन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें, और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया, और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूंगी। नहीं, और वो मैं अच्छा, और मैं डिफरेंट, हाँ, उनको एक और जो उनको देखिए आप, ये जो पहले जो मैं अंदर गई ना, तो उनकी जो मतलब उनकी जो परेशानी थी ना, वो उनको गुस्सा था, और वो परेशान थे कि जो कहते जो आइसोलेशन है ना, कहते आइसोलेशन इतनी बुरी है, और उनको इतना लंबा, पहले तो हफ्ते में एक दफा हम में से कोई मिल लेता था, मुकम्मल आइसोलेशन, और इतने डिस्टर्ब है। हमने उनको बताया कि हम आपके बाहर बैठ रहे हैं, तो जब उनको ये भी पता चला कि ये कोई एनडीयू कोई इन जगह इस किस्म की इनके, तो वो और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत किया, वो इतने डिस्टर्ब हुए, कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं, और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है, आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे, उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है, और उनको न कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर है। फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का उनको बड़ी तकलीफ थी। कहते हैं कि अफगानिस्तान का आपको पता है कितनी दफा उन्होंने यही भेजा, हमें ट्वीट्स इनकी पिछली आप देख चुके हैं कि अफगानिस्तान में पहले इन्होंने ड्रोन हमले किए, पहले धमकियां दी, फिर ड्रोन के साथ हमले किए, फिर इनके लोगों के इतने हमारे जो पाकिस्तान में जो अरसे से रह रहे थे, उनको इन्होंने कितनी बेदर्दी से, बेइज्जती से इनको अपने मुल्क से निकाला। तो कहते हैं कि ये जानबूझ के आसिम मुनीर उनको प्रोवोक कर रहा था, और मकसद ये था कि इंटरनेशनली अपने आप को मुजाहिद कह सके, और उसका वो तब से कह रहे हैं कितने महीनों से कि अगर ये करोगे तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। आप जो ड्रोन अटैक अपने जो ट्राइबल एरिया में ड्रोन अटैक करते हैं, उन पे भी ये कह रहे थे कि इससे दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी तो बढ़ेगी। कहते हैं अब इसी कहते हैं कि आसिम मुनीर की पॉलिसीज है जिसकी वजह से आज हमारा सारा मुल्क सफर कर रहा है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। उनको बहुत अफसोस था। वो अपने नहीं तो वो कहते ये सब कुछ इसलिए कर रहा था कि इंटरनेशनल उसको मुजाहिद कह सके, सारे उनके लिए कर रहा है, उसको अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, और फिर उन्होंने बड़ा ये अखबार में पढ़ा जो किसानों के साथ हो रहा है, और कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे, आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज हैं, कहते हैं ये आपको गुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है, फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें उनकी नस्लों के गुलाम बनोगे, और आपकी नस्लें भी उनकी गुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहते अब उठे, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका। किसानों का, उनको एक्चुअली खास किसानों की मेरे से आज बात की थी कि उनको उनके बारे में बड़े परेशान थे कि उनके साथ आजकल क्या हो रहा है। सेहत के बारे में ये बता रहे हैं, सबसे ज्यादा इसी सेहत के बारे में बताइए कि सेहत माशाल्लाह ठीक थी, गुस्से में थे, डिस्टर्ब इस तरह थे कि गुस्से में इसलिए थे कि इन्होंने आइसोलेशन, कहते हैं ये फिजिकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर ज्यादा बुरा होता है। और इवन आप अगर ह्यूमन राइट्स के जो आप रूल्स देखें ना, उसमें ये भी टॉर्चर में ही कंसिडर होता है जो आजकल कर रहे हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई कानून और आइन नाफिज नहीं है तो हम भी फिर हर कानून और आइन से आजाद हो जाएंगे। मैडम माशाल्लाह खान साहब सेहतमंद है, सबसे बड़ी बात ये है।